नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार तेजी के साथ कारोबार है। और अब क्योंकि इसी हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग है, उसके पहले हमने देखा है कि सभी कमोडिटीज में यहां पर तेजी है और सोने चांदी में जो अप ट्रेंड है वो आज भी यहां पर जारी है। आगे जाके सोने के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि पिछले हफ्ते सेम टाइम हम 69-70 के बीच में जूझ रहे थे, लेकिन कच्चे तेल के प्राइसेस अब $73 अ बैरल के ऊपर हैं। ऑफकोर्स जिस तरह से गल्फ ऑफ मेक्सिको में आउटपुट बंद है, लिबिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर फिर कुछ कंसर्न्स हैं, उन सभी का प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मॉनसून्स की, क्योंकि इससे कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत भी है। एज ऑफ नाउ सितंबर की अगर बात की जाए तो डबल डिजिट परसेंटेज ये हायर है अपने नॉर्मल से। यहाँ से अब सितंबर का महीना कैसा रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, आईएमडी के हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च KS हसालिकर, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने और प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े इंटरव्यू की। न्यूज़ 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने खुलकर बड़े मुद्दों पर बात रखी। चुनावों में फ्रीबीज पर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि हर सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने संसाधनों और बजटों में उन वादों को पूरा कर पाएंगे या सिर्फ ये जनता को लुभाने के लिए है। You know, it's election season. We have 4 state elections coming up. I wanted to ask you a question around freebies. How concerned, how worried are you about political parties promising freebies? You know, the Prime Minister was the one who really took this up, spoke against the Revdi culture in a big way. But now I see that some of your governments are doing exactly the same thing. You know, in Madhya Pradesh, we had Ladli Bahna. Now we have Subhadra that is being announced tomorrow in Odisha. Then again in Maharashtra. How dangerous is this trend, and what is your message of fiscal prudence to the states? Look, let me be clear. I've been saying this much before the debate on the Lok Sabha issues. Manifesto-related issues came up. Every state and the center will have to look at the work which is capable of being undertaken by every government, meaning center, any party aspiring to get to the center or aspiring for state government's positions will have to understand what that budget is capable of taking up. Will that state be in a position to undertake its developmental activities plus all the freebies and get it funded through the budget in the assembly, get it clear in the assembly or in the parliament, and then announce schemes. Now, what I find is when offerings are made, freebies are given for temptation, and then when states struggle to implement them because they don't have the resource, they don't even have ways in which they can increase their revenue, then comes the problem. Classic example is of Karnataka and Himachal Pradesh, where even without doing their homework, they gave a lot of promises. Look at what has happened between the two states. In Himachal Pradesh, what is the halat? And this is not because I'm sitting as a BJP member or currently in the central government. The state government themselves have been saying that they are just not able to cope with it. Yeah, they can't pay salaries. They can't. And they were going to pay OPS, pension, old pension scheme. They are not able to pay current salaries. They offered to go through the OPS back again. And Karnataka, unbelievable number of promises. And today the state government, the chief minister's advisor and one of the chief minister's assistant and the deputy chief minister, all of them said, no, we can't undertake developmental activities. ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन है जो आप पूरा दिन आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर देखते रह सकते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर सोने की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेज़ी है। ये ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर हमने कांस्टेंट सपोर्ट आता हुआ देखा है। चिराग, जिस तरह के गेन्स हैं और ऑल टाइम हाइज लगातार बनते हुए नजर आए हैं, स्पेशली यूएस फेड की मीटिंग से पहले, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है या फिर 50, और बाजार एज ऑफ नाउ क्या फैक्टर इन कर चुके हैं? देखिए मनीषा, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीजें। एक तो अगर हम देखें तो गोल्ड में अब एक कंसेंसस बनते जा रहा है कि और यहाँ से $100 से $150 की शायद गोल्ड में रैली हमें देखने को मिल सकती है।
हालांकि आज का दिन है, आज का और कल का दिन है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये डिटरमाइन करेगा कि ये जो रैली है कितनी जल्दी आएगी। क्या हम $2600, $2650, $2700 इस साल देखेंगे या नेक्स्ट ईयर देखेंगे, क्योंकि फेड का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखें तो स्ट्रीट ऑन एन एवरेज 100 to 125 बेसिस पॉइंट अराउंड रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 4 या 5 मीटिंग्स में। आज की कमेंट्री, आज और कल की कमेंट्री कैसे निकल के आती है, ये डिटरमाइन करेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम कैसे रहते हैं इन नेक्स्ट 5 to 6 months टाइम। एब्सोल्युटली। चिराग, साथ ही साथ इंडियन बाइंग कितनी इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि जितने भी ज्वेलर्स से यहाँ पर बातचीत हो रही है उनका मानना यही है कि एक डेंट तो यहाँ पर पड़ा है और मोस्टली अब ये हफ्ता निकल जाना देना होगा। एक बार यूएस फेड की मीटिंग आके चली जाए, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी कि नियर टर्म प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने इंडिया में हमेशा ये होते हुए देखा है कि जब जब एक स्पाइक आ जाता है $50-60 का एक छोटे पीरियड में, तो हम देखते हैं कि बाइंग थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। हालांकि हम एक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ज़रूर जो ब्राइडल डिमांड है वो बरकरार रहेगी। हालांकि ये ऐसे जब प्राइस मूव्स आते हैं तो डेली वेयर सेगमेंट जो होती है वो ज़रूर इम्पैक्ट होते हुए दिखता है। तो अगर प्राइसेस शॉर्ट टर्म में $2650 शायद अगर क्रॉस कर देते हैं अगले 1-2 महीने में, तो आपको ज़रूर डिमांड में इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ अब आगे आप हमें बता चुके हैं कि 2670, 2710 जैसे लेवल्स यहाँ पर मेटल फोकस की तरफ से हैं। आपको लगता है कि वो वन वे ट्रेंड होगा या फिर आपको लगता है वॉल्टिलिटी है, यहाँ से $100-150 की प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल देखिए, वन वे ट्रेंड नहीं लगता है। हमें लगता है कि शायद यहाँ पे विपसॉज हमें देखने को मिल सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि फेड की मीटिंग के बाद अगर फेड 25 या 50 बेसिस पॉइंट से कट करती है तो आपको ज़रूर एक स्पाइक देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट डाइजेस्ट करेगा कमेंट्री को और फिर वापस शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें प्राइसिंग कर चुके हैं। जैसे रेट कट आने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस इन है, तो ज़रूर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है यहाँ से। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया चिराग साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 25 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर्ड इन है, 50 अगर आता है तो और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। और यहाँ से ऑफकोर्स जो ब्राइडल डिमांड है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो वॉक-इन्स हैं वो ऑफकोर्स वेट करेंगे कि किस तरह से जब मुनाफा वसूली आए तो यहाँ पर बाजार में फिर से उतरेंगे। हमारे साथ किशोर नारने जुड़ चुके हैं। किशोर नमस्कार, आपकी क्या सेंस है बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? आप कहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगे इन हायर लेवल्स पे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जो हमारा जो अर्ली टारगेट था 2640 के आसपास का जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट लगभग पहुंच चुका है वहाँ पे। शायद एक रेट कट के बाद वो लेवल अचीव हो जाएगा, बट जैसा चिराग ने बोला है कि वहाँ से आपको जो फर्दर रैली के लिए फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए जो हमको अभी फ़िलहाल के लिए दिख नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक बार गोल्ड रुक जाएगा अराउंड 2650 के आसपास। थोड़ा बहुत जो करेक्शन आ सकता है या एक बार स्टेबलाइज होके थोड़ा 1-2 महीने तक, अगर जब तक नया डेटा इनपुट्स नहीं आता है तब तक एक्चुअली मार्केट साइडवेज हो सकता है। हालांकि 2 चीज़ें इसको ड्राइव कर रहा है डेफिनेटली। वन इज़ द रेट कट एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है कि डॉलर ऑलमोस्ट आपको ऊपर से 6-8% डाउन है। आई थिंक इवन अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आता है तो भी एक करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग आपको देख सकते हैं, बिकॉज लगभग जो है उतना डिस्काउंट हो चुका है। अगर उससे थोड़ा कम आता है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है, तो करेक्शन स्लाइटली डीपर हो सकता है। तो एक नी जर्क रिएक्शन आपको डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में जो आपका प्रश्न है, तो प्रॉब्ली सिल्वर मेरे लिए काफ़ी फेवरेट कमोडिटी रहने वाला है ये साल के लिए, और स्पेशली नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा रैली हम एंटिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी समय से हम बुलिश थे इसके ऊपर। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 90,000-90,500 के आसपास का लेवल्स इंडियन मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पे शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग किया हुआ है उनका थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। अगेन अगर रेट कट के बाद या वेडनेसडे के बाद अगर करेक्शंस मिलता है, सिल्वर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा 1,25,000 1,20,000 का जो टारगेट्स है मीडियम टर्म में, मतलब यहाँ से मतलब 8 से 12 महीने में, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। तो एवरी डिप इफ़ यू आर आस्क मी मीडियम टर्म, सिल्वर इज़ अ बेटर बाय फ्रॉम हियर।
ऑलराइट, तो चांदी में खरीदारी करना यहाँ पर बेहतरीन है और सोने में ऑल टाइम हाइज यहाँ पर आगे बरकरार रह सकते हैं। लेकिन चांदी, जैसे किशोर लगातार हमें कहते रहे हैं कि लाख रुपए के ऊपर 1.25 लाख तक भी यहाँ पर जाने की एक्सपेक्टेशन है। किशोर, साथ ही अगर मेटल्स को देखा जाए तो ये हफ्ता और अगर एक लास्ट मंथ का चार्ट उठा के देखें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। मल्टी वीक हाइज पर ज़्यादातर मेटल्स यहाँ पर हैं, फिर चाहे वो जिंक हो जो 9 हफ्ते के हाइज पर है, कॉपर 8 हफ्ते के हाइज पर है, एल्यूमिनियम और टिन 3 वीक हाइज पर है। कैसे देखते हैं आप ये करंट लेवल्स? सी अगेन यहाँ पे डॉलर वीकनेस जो है वो काफ़ी हद तक कमोडिटीज़, ओवरऑल कमोडिटीज़ को लिफ्ट किया हुआ है। उसके साथ साथ बेस मेटल्स में थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। जो चाइना ने जो रियल एस्टेट सेक्टर को सुधारने के लिए जो मेजर्स अनाउंस किया है, खास करके जो अनसोल्ड इन्वेंट्री को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने वाला है, एंड देन इसको गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं वो बिल्डर्स से ये इन्वेंट्री क्लियर करवाने वाला है। आई थिंक थोड़ा बहुत मूवमेंट इसके बाद भी आया है। आई थिंक अगर वो अभी तो फिर सिर्फ ये मेजर्स अनाउंस हुआ है, इसको इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए ये सेंटिमेंट को लिफ्ट अप किया हुआ है। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब स्ट्रक्चरल तेज़ी है, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये तेज़ी बरकरार रहेगा। जिंक में हम शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग का सलाह दे रहे हैं, 274 275 तक आपको अपसाइड हो सकता है। कॉपर में 807 के आसपास मुझे थोड़ा वैल्यू बाइंग लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। 815 का टारगेट के लिए कॉपर बाइंग करके चल सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड हैं। एक क्विक वर्ड ऑन क्रूड ऑयल जो 73 के पास है, यहाँ पर क्या राय है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हरिकेन का जो शॉर्ट कवरिंग आया था, सी वन ऑफ द थिंग इज दैट क्रूड में ऑलमोस्ट कंसेंसस व्यू है कि फंडामेंटली क्रूड वीक है। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा डिबेट नहीं है कि डिमांड साइड से सब लोग ऑलमोस्ट कंसेंसस व्यू है। सो इसके वजह से आपको जो स्पेशली फंड पोजीशंस है, जो लार्ज हेज फंड का पोजीशंस अगर देखेंगे तो आपको बहुत सालों के बाद एक्चुअली द नेट शॉर्ट पोजीशंस अभी नेट लॉन्ग से ज़्यादा आ गया है ऑन द कमर्शियल साइड। तो यहाँ पे यूनिवर्सली मार्केट मंदी का तरफ रुख ले रहे हैं। आप डीजल और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें भी आपको फंड पोजीशंस अगर देखेगा तो नेट शॉर्ट पोजीशंस बढ़ गया है। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पोजीशंस आपको 1 साल 2 साल मल्टी ईयर हाई पे चल रहे हैं नेट शॉर्ट पोजीशन। सो यहाँ पे थोड़ा भी अगर ब्लिप आता है कि एनी जियोपॉलिटिकल कंसर्न और एनी सप्लाई साइड इश्यूज, कि आपको ये जो शॉर्ट कवरिंग है बहुत तेज़ी से क्रूड को ऊपर लेके जाता है। ये जो $2-3 का जो रैली हम लोग ने देखा है बिकॉज ऑफ द हरिकेन इन मेक्सिको, प्रॉब्ली वो एक्चुअली वो इंडिकेट करता है हाउ नर्वस इट इज़। सो कंसेंसस व्यू इस मंदी का है, बट पोजीशन सो हैवी है, थोड़ा भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। फिलहाल के लिए हम इंट्राडे के लिए इसमें बाइंग का सलाह दे रहे हैं। एनीवेल क्लोज टू अराउंड 5890 5900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 6010 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। फेयर पॉइंट दैट। तो खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में, इवन एनर्जी में आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज एंड ओपिनियन भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मौसम की और बताएंगे आपको कि एग्री एज अ स्पेस में क्या करना चाहिए। स्वागत है आपका और बात अब यहाँ पर मौसम की कर लेते हैं, जहाँ पर सितंबर का महीना काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड बीता है, लेकिन ये वो भी समय है जब हार्वेस्ट के लिए पूरी तैयारी है, फ्लावरिंग हो चुकी है और आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम यहाँ पर देखेंगे कि कटाई शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मिस्टर के एस सोसालिकर IMD से अब जुड़े हैं। मिस्टर सोसालिकर, शुक्रिया साथ देने के लिए। एज ऑफ नाउ अगर पूरा मानसून देखें तो कैसा रहा, सितंबर का महीना अब तक कैसा है और अब क्या एक्सपेक्टेशन है बाकी बचे हुए सितंबर की? जो आज की तारीख तक के आंकड़े हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 108% जो है वर्षा हो गई है। पूर्वानुमान 106 का था और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पूरे देश में भारत में वर्षा अच्छी हुई। लेकिन कुछ अभी स्टेट है जैसे बिहार है, अरुणाचल है, JNK है, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे अभी भी बरसात के आंकड़े जो है वो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरे देश में बरसात वैसे अच्छी हुई है। सितंबर की बात की जाए तो कितना अबव नॉर्मल है और बाकी के सितंबर के लिए क्या सेंस है? जो पूर्वानुमान है इसमें हमने ये कहा है कि सितंबर में जो है वो वर्षा जो है औसत से ज्यादा होने की संभावना अच्छी है और आने वाले 2 सप्ताह जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट सप्ताह में फिर एक बार थोड़ी सी बरसात में हमें थोड़ा सा लल दिख सकता है।
लेकिन उसके बाद जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर है उसमें फिर एक बार हम देखेंगे कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में फिर एक बार हमें बरसात जो है औसत से ज़्यादा दिख सकती है। और कुल मिला के जो है ये जो आने वाले 2 या 3 सप्ताह है, इसमें हमें आने वाला एक सप्ताह छोड़ने के बाद उसके बाद हमें बरसात दिखाई देगी। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिप्रेशन जो कम दबाव का क्षेत्र बना है झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर, इसका जो फायदा है इसके चलते जो है आज और कल मतलब आने वाले 48 घंटे में उड़ीसा, दक्षिण बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और यूपी, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है हेवी टू वेरी हेवी मतलब मूसलाधार बरसात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मिस्टर ओसालीकर, यूजुअली अराउंड दिस टाइम जो कि 17-18 सितंबर है, हम एक मॉनसून विड्रॉल की बातें करनी शुरू कर देते हैं। क्या इस बार वो डिलेड है या फिर आपको लगता है कि वो फिनोमेना स्टार्ट हो चुका? ऑलरेडी मानसून की जो तारीख है, उस विड्रॉल की जो तारीख है उस हिसाब से ऑलरेडी ये डिले में चल रहा है। लेकिन कुछ फोरकास्ट पूर्वानुमान इस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में इस तरह की स्थिति, हवा की स्थिति जो है बदलने की संभावना दिख रही है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान से तकरीबन 22 तारीख के आसपास ये विड्रॉल शुरू होने की संभावना है। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों में देगा। मिस्टर ओसालीकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस सबको बहुत कंसाइजली हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स सितंबर बेहतरीन है और जैसे उन्होंने कहा कि जो मॉनसून की एक्टिविटी है वो अगले हफ्ते थोड़ी सी लल रह सकती है। ये वही समय है जब हार्वेस्ट शुरू होता है और लास्ट वीक में एक बार फिर से यहाँ पर बारिश देखने को मिल पाएगी। दिनेश सोमानी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं मॉनसून की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? बहुत जल्दी यहाँ पर कटाई, हार्वेस्ट, अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एग्री का बाजार? जी बिल्कुल, मानसून अभी तक के तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ जगह जो अत्यधिक बारिश हो चुकी है उससे फसल को काफी नुकसान हुआ है। मतलब महाराष्ट्र के अगर आप सर्वे करते हो तो कई ऐसे जगह है जहां पर बहुत सारे 10 से 20% का डैमेज देखा गया है। खास करके तुअर के फसल को देखा गया है, सोयाबीन के फसल को देखा गया है और मुख्य बोले तो कपास की फसल को देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अत्यधिक वर्षा और भी अगर ज्यादा होती है और धूप खिलकर नहीं आती तो मुझे लगता है कपास को कुछ हद तक डेफिनेटली डैमेज होगा, तुअर को भी होगा और पल्सेस के कुछ कमोडिटीज में डैमेज होने की पूरी संभावना है। लेकिन बारिश होने के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन चार्टिस्टिक्स देखा जाए तो मुझे लगता है कि कपास में रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। एक तो सोइंग कम है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट ऑन रिकवरी मोड है। जो नीचे में $67-68 गया था वो दोबारा $73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कपास एक ऐसा है जो जल्दी रिकवर कर सकता है। एब्सोल्युटली, और जैसे आप देख भी सकते हैं कि तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार भी है। साथ ही साथ दिनेश जी, अगर यहाँ पर मसाले, कैस्टर, बाकी कमोडिटीज में देखा जाए तो कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको देखती हो, गुआर इंक्लूडेड? कि डाउन साइड से अगर देखा जाए तो 6700 का लो बनाने के बाद धनिया 600 पॉइंट की रिकवरी कर चुका है, 7350 लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा करेक्टिव फेज कहीं आता है तो धनिया में रिकवरी बहुत स्पीडी आ सकती है। अराउंड जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है आई थिंक 7200 के आसपास बाइंग की जा सकती है 7500 के लेवल के हिसाब से, 7000 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके। हल्दी की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 14900 14950 के आसपास की बाइंग मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर एक बार दोबारा बिकवाली बन सकती है और जीरा मुझे लगता है 26,200 का बेच कर चलना चाहिए। एक फाइनल सवाल दिनेश जी, और यूएस फेड की मीटिंग से पहले नॉन एग्री में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे लगता है सिल्वर में रिकवरी बहुत फास्ट आई है, 7,000-8,000 रुपए की तेजी आई है। आज भी मुझे लगता है 89,400-500 के आसपास बाय करना चाहिए। 90,200 91,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 88,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सिल्वर इज स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ। ऑल राइट, चांदी में सभी की यहाँ पर तेजी की राय है और खरीदारी के मौके अब भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो यहाँ पर फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।